देखो फिर से सुन लो ये वाला, दिस इज फुल इनफाइनाइट अगेन, और ये अगेन full circle, both are having the field in upward direction, therefore will be added up. यहाँ प्लस आ जाएगा and this is dot. Fingers ऐसे रख इसको, infinite के लिए what we have to do it, hold the wire, thumb should be indicating like this side, इधर के जो points होंगे fingers will be coming out from this, and इसमें क्या करना है, fingers को ऐसे रखना है and thumb is coming outward, both are in same direction outward, therefore added up. All right, no problem. This can be asked in your board's examination because they are the part of our course. What about this? इसमें mistake हुई है, some of you have done it right. बोलो इसको हम divide कर लेते हैं. This is one, this is second, this is third. तो B1 अलग अलग लिख लो पहले. B1 कितना है, this wire का, ये infinite से आ रही है and up to here, this is coming from infinite but up to here it is. इसकी field कितनी होगी बताते जाइए at point C. Ayush, what will be the field of this? 0. Why 0? Because it is in the line. Point अगर कंडक्टर के सामने होता है, लाइन में होता है, एंगल 0 या 180 हो जाता है. Here it will be angle 0. B1 will be 0 and 2 is the semicircle. उसकी कितनी होगी, mu naught I by 4R, huh? 4 pi R or 4R only? 4 pi r. Direction 4 pi r. इसकी semicircle की 4r. 4R होगी. 4R. डायरेक्शन Upward. फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, थंब यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड डॉट. व्हाट अबाउट दिस? नाउ थर्ड वन इज दिस, इनफाइनाइट तक है. B3 तो सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. यहाँ पे पाई एक्स्ट्रा आ जाएगा सेमी इनफाइनाइट. एंड दिस आल्सो होल्ड इट such that thumb goes this side, fingers will be coming out from this point outward also. Same is outward. तो दोनों में outward है. First one is 0, second one is semicircle, उसकी upward आ रही. Again third one is semi infinite. यहाँ point एक इसके सामने, one end के सामने है point. तो added together will be B net. add कर दो सर. First one is 0. क्या कॉमन आएंगे? Second and third में mu naught I and 4R is coming out, and in bracket 1 plus 1 by pi. ठीक है. Net field is outward. Clear? So this is also, this can also be asked in your board's examination. हो जाएंगे ये question. They're not that difficult if you just pay attention. And so many times I'm repeating again directions and all. So you should be in position to do them. All right. Okay. This is done. Or this was discussed. This was interesting question, है ना? इसमें हुआ किसी का, I have got 2-3 answers, but right is, there is no right answer. तो इजी था ये, ऐसा क्वेश्चन किए भी हम लोगों ने. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सलोनी, you have done it here. At the end, you have done it wrong. Are you there? Yes, Are you there? So the elementary. So this was the wide strip of width B, and point P is at distance R from one of the ends. You have to write the field of this strip at point P. तो इसको यूनिटरी मेथड से पहले करंट निकाल लेंगे, है ना?
ओके करंट एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली ग्रीन कलर की, थिकनेस dx, very small thickness dx. Current in the strip will be I dash will be current per unit length per unit width multiplied by the width of the elementary strip narrow. This will be act as a wire. ये वायर जैसी दिखेगी ना, तो वायर की हमें फील्ड आती है लिखनी, फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप एट p, that is nothing but a wire. ठीक है, will be mu naught I dash, करंट उसमें से पार्ट ऑफ द करंट गोज, therefore I dash डिवाइड बाय 2 pi r, r की जगह x लेंगे यहाँ, because this is at distance x. now इंटीग्रेट कर देंगे, I dash की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दो, that's all. I dash की वैल्यू पुट कर दो, mu naught I dash is I by b, dx is here, नीचे 2 pi x here. इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, दिस इज db, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई 2 pi b dx अपॉन x. लिमिट देखो, दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप कैन कम अप टू हियर, यहाँ तक आएगा, तो लोअर लिमिट विल बी r, और दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप कैन गो अप टू द दिस एंड, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये, इट विल बी b प्लस x, अपर लिमिट विल बी b प्लस x, लोअर लिमिट इज r, अपर b प्लस x नहीं, सॉरी b प्लस r, ये b है और दिस इज r, x तो इमेजिनरी, x तो हमने वो एलिमेंट्री स्ट्रिप की डिस्टेंस ले दी, तो b प्लस r, तो लेफ्ट साइड में वी विल गेट b टोटल फील्ड, राइट साइड में म्यू नॉट I अपॉन 2 pi b इज एज इट इज 1 by x का इंटीग्रेशन हाउ मच, बोलो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑलरेडी वी हैव डन ln x, अपर लिमिट इज पुट कर देंगे, दैट विल बी b प्लस r डिवाइड बाय लोअर लिमिट r, दैट्स ऑल. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, so you should be ready for such questions also, because one odd question can be like this. ठीक है, of course this is important for competitive examination, but board examination also one odd questions are like this only. That makes the difference. If you want to score 100% marks, you should know all these points. ठीक है, एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन सिमिलर थिंग्स, यहाँ पे करंट जैसे निकाला ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, उसमें भी करंट निकालना पड़ेगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो विड्थ थी, उसमें करंट पर यूनिट एरिया से निकालने वाले हम लोग, है ना. एनी डिफिकल्टी सो फार, बोलो. पॉइंट P इज इन द प्लेन ऑफ द स्ट्रिप, ऐसे जिस सपोज टेबल पे ये स्ट्रिप रखी है, लॉन्ग है, इट शुड बी वेरी लॉन्ग, एंड पॉइंट P इज ऑन द टेबल इटसेल्फ. ठीक है, करंट निकाल लिया एलिमेंट्री, उसमें इनफाइनाइट वायर का फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट्स बाहर, वेरिएबल्स इंटीग्रेशन के अंदर, दिस साइड इट विल बी टोटल फील्ड, एंड इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज व्हाट, लॉग ए बाई बी. कौन सा लॉग है ये, लॉग ई, तो लॉग ई को हम ln लिखते हैं. All right, now we'll see next question. नहीं, अभी हो गया, I think this was the last. So we'll see further topics of Ampere circuital law. Do you remember what is Ampere circuital law? किसके लिए है वो Ampere circuital law, किसके लिए, बोलो. For finding the magnetic field, line integral for any closed loop is mu naught times of the current threading through the loop. ये हम आगे लगाने वाले हैं, three derivation. This is also, now this question I am talking about, very important, frequently asked in competitive examination and boards. तो देखो इसमें 3 पार्ट है. Let us read the question and do it. ये theory में इसका
लास्ट डेरिवेशन आता है ये वाला, इनसाइड थिक सिलेंडर के अंदर फीड। नाउ let's do all the parts. Figure shows long straight wire of circular cross section नहीं, देखो इसमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, पहले जो वायर थी 3 वायर थी, एरिया वाज रेडियस वाज नॉट गिवन देयर, यहाँ पे इसकी रेडियस भी दी हुई है, दैट इज द डिफरेंस। कैरिंग द स्टडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें across the cross section, uniformly distributed across the cross section. Now calculate the magnetic field in the region R is equal to less than A, मतलब inside and outside both, R greater than A or less than A, मतलब एक पॉइंट तो इधर रहेगा बाहर, एक सरफेस पे भी निकाल लेंगे, एक अंदर रहेगा, 3 पॉइंट्स पर। तो कैन somebody tell me आउटसाइड कितना आएगा? आउटसाइड बोलो। सेम एज, नाउ ये सिलेंडर है इनफाइनाइट, तो ऐसे पॉइंट पी ले लो और एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ। इनफाइनाइट वायर के लिए जो किया था बी डॉट डी एल, तो डी एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, तो ये इधर भेज दो नीचे, तो आई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सेम एज द वायर, सेम एज दैट ऑफ द वायर, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन नहीं किया, सेम एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ लॉन्ग वायर, ऑलरेडी डन। नाउ ऑन द सरफेस, सरफेस पे कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू ए, रेडियस जो है ए दी है इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस ए है, तो सरफेस पे आर की जगह ए लिख देंगे, दैट इज आल्सो डन। नाउ इनसाइड, अरे ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं होगा, ये एम्पियर लूप ऐसा आएगा, देखो इसमें ऐसा नहीं आएगा, इट्स लुक लाइक बोथ आर इन सेम प्लेन, तो ऐसा आएगा, ठीक है, जैसा हमने वायर के लिए किया था। नाउ इफ पॉइंट इज इनसाइड, यहाँ पर है, तब ऐसा एक ड्रॉ कर लेंगे सर्कल, उसमें से करंट कितना जाएगा, यूनिटरी मेथड से करंट निकाल के यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। ओके, इनसाइड देखते हैं, पहले तो डायग्राम बना लो। ओके, जस्ट लेट मी रिमूव इट कंप्लीटली, डू योरसेल्फ, चलो करो, अपने आप करो इसको। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड ले लो, फिर इसमें टेक द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, कितना करंट इसमें से जाएगा, देखो आई डैश, टोटल करंट आई है, टोटल करंट आया, इसमें से आई डैश जाएगा, अभी हमने यूनिटरी मेथड से निकाला, तो ये एम्पियर लूप ले लिया हमने, ऑलराइट। तो इसमें से करंट निकालेंगे, करंट थ्रू एम्पीरियल लूप, आई डैश इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट कितना है, आई, एरिया कितना हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई, पाई ए स्क्वायर, ए द रेडियस, ए रेडियस है, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर है ये, सॉलिड है ना, इट इज सॉलिड सिलेंडर, तो तो करंट कितना जाएगा इसमें से, करंट पर यूनिट एरिया हो गया, एम्पियर लूप का एरिया कितना है, इसका हमने आर लिया, ये रेडियस आर लिया, और ये वाला रेडियस ए है, एम्पियर लूप का रेडियस आर, तो उसका पाई, उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया की बात हो रही ना, पाई पाई विल गो, करंट थ्रू द लूप विल बी आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस एम्पियर लॉ लगा दो, बी डॉट डी एल
is equal to mu naught times of current threading through the Amperian loop. ये कितना हो जाएगा सेम 2 pi r हो जाएगा इधर, b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 pi r. यहाँ पे करंट कितना है वो निकाल लो, यूनिटरी मेथड से हमने निकाला है वो पुट कर दो, तो एक कार कम हो जाएगा इसमें से. नाउ बी विल बी इनसाइड, ये इनसाइड फील्ड है. एक एक पॉइंट यहाँ पे और हाईलाइट करना है, पहले कंप्लीट कर लो इसको, बोलो फिर बताते हैं. बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, नीचे क्या आ रहा है 2 पाई ए स्क्वायर आ रहा है, डायमेंशनली बैलेंस है. देखो नीचे अगर ए स्क्वायर है तो ऊपर एक लेंथ का डायमेंशन आना चाहिए, तो बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. इसमें क्या था इनवर्सली, आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आर यू देयर, कैन यू सी ऑल द पॉइंट्स? देखो एक Yes, sir. Yes, sir. इनसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी आउटसाइड, यहाँ पे देखो आर है, कैन यू सी, रेड से मैं दिखा रहा हूँ, और इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So graph will be somewhat similar to the acceleration due to gravity due to earth, somewhat similar. उसमें inside acceleration due to gravity ऐसा आता है, outside r square आता है, तो otherwise they will look like same. थोड़ा सा deep इसमें slow decrease होगा. Now one drawback is there in derivation, they have not mentioned, NCERT book में उन्होंने कुछ mention ही नहीं किया, that's how they have done it. बोलो क्या anything missing here? बोलो कुछ डाउट आ रहा है आपको इसमें, इस डेरिवेशन में? वन पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड हियर, लेट मी टेल यू, कैन यू पिन पॉइंट दैट? बोलो क्या क्या, और एक वन मोर पॉइंट शुड हैव बीन डिस्कस हियर. बोलो देखो इनसाइड है ना, एनीबॉडी क्विकली जस्ट थिंक अबाउट दैट, अदरवाइज बाद में ध्यान आएगा रे सब ये तो सबने डिस्कस ही नहीं किया ये पॉइंट. बोलो जल्दी से, कुछ समझ में आ रहा है? तो इनसाइड मीडियम इज नॉट वैक्यूम, यहाँ पे हमने क्या लिया, म्यू नॉट लिया, बट इनसाइड द सिलेंडर इट इज कंडक्टर, उसका जो है म्यू नॉट में भी डिफरेंट, बट सम कंडक्टर हैव द वेरी क्लोज टू द म्यू नॉट, क्लोज टू द वैक्यूम. कुछ कंडक्टर जो होते हैं पैरामैग्नेटिक वगैरह, तो उनके वैक्यूम के म्यू नॉट के बराबर ही होता है उसके परमिएबिलिटी, बट सम हैव लार्जर वैल्यू लाइक आयरन एंड ऑल. तो दिस पॉइंट इज मिस्ड इनसाइड द टेक्स्ट बुक, बट आई एम टेलिंग यू, कंसीडरिंग, ऐसे लिख दिए यहाँ पे, कंसीडर परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर क्लोज टू द वैक्यूम, कंसीडर permeability of conductor close to vacuum, close to that of vacuum. Some conductors are like that, otherwise ferromagnetic की तो बहुत high होती है, not पता. We'll see what is ferromagnetic. तो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं इसमें, देखो कैन वी ड्रॉ द ग्राफ? यस, बी वर्सेस आर. दिस इज डन. ये आ सकता है बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं एक्चुअली, दोनों पार्ट कंबाइन करके. आई विल आस्क यू द न्यूमेरिकल. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट हियर इंपॉर्टेंट. नो प्रॉब्लम, और यू वांट टू आस्क अगेन? तो यहाँ पर हम लोगों ने करंट यूनिटरी मेथड से निकाल लिया करंट पर यूनिट एरिया. ये करंट पर यूनिट एरिया है, तो इतने एरिया में जो करंट होगा उसको आई डैश बोलेंगे. दैट्स व्हाट इज क्रॉसिंग थ्रू द एम्पियर्स लूप. एम्पियर लूप, एम्पियर सर्किट लॉ लगा दिया. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप. इसके अंदर से आई डैश जा रहा है, बाकी बाहर से जा रहा है, वो हम उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है. बी वर्सेस आर ड्रा करो, बी वर्सेस आर ग्राफ ड्रा करके दिखाओ जल्दी से. देन आई विल शो यू. ड्रा योर ऑन योर नोटबुक.
डन। ओके देखो, सी ऐसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले, बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनसाइड, long thick cylinder or thick wire you can say. Inside directly proportional है और outside inversely proportional. Circumference में R is equal to A, वहाँ पे maximum है. Getting or not? Similarly, अर्थ की फील्ड भी ऐसे ही चेंज होती है ऑलमोस्ट. अर्थ की फील्ड and earth की acceleration due to gravity, both are equal. You don't know, do you know? Magnetic field of the earth, gravitational field of the earth and acceleration due to gravity, both are the same formula. ठीक है. Do you notice that at two distances field will be same? एक तो suppose यहाँ पे देखो B है, if you extend the line, one point will be inside, other point will be outside. At two places field is found to be same, one point will be inside, other will be outside. And zero also, zero center में हो जाएगी सिलेंडर के और इधर इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगी. Getting or not this point? So you can, after knowing this point, field is zero at field is zero at center and at infinity, and field at two places value of field is same. One point will be inside, other will be outside. Outside B is inversely proportional to R, inside B is directly proportional to R. Okay. Now tell me this question. Yeah, you solve and send this question. Can you see here? Let me read it. Important question here. A very important, you can write. If field inside the long cylinder at a distance R dash is equal to A by 3 is B, where A is the radius of the cylinder and R dash is the distance from the axis of the cylinder. R जो distance है ना, ये axis से होती है, but मैंने R dash distance symbol दिया तुम्हें. At what distance from the axis of cylinder field will be same again. Field will be, यहाँ पे B लिख दो. Field will be same again. Consider magnetic constant of material of cylinder mu naught. सिलेंडर का भी मैग्नेटिक कांस्टेंट म्यू नॉट ले लो और बाहर का तो वैक्यूम का तो म्यू नॉट होता ही है. दैट विल गेट कैंसल. These points may not be written in your question, but you have to use this point. तो एक से एक अंदर पॉइंट है, कहीं पे एक बाहर है, तो ये R डैश डिस्टेंस दिया है, बाहर की डिस्टेंस R ले लो. दोनों फार्मूले जो सीखे कैसे करेंगे, how to do this question. Both the formulas can be equated, both inside and outside. दोनों मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले हैं, दोनों को लिख के इक्वेट कर दो, कॉमन टर्म्स विल गो, तुम्हारा R आ जाएगा in terms of A something. So note down, solve and send this question.
ठीक है, समझ में आया जी? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो any difficulty so far? Are you there? Yes, sir. Okay, any difficulties so far? No, sir. Okay. Okay. So do it. Try to do. Try to get the right answer for this question. Okay. Now one more related point I am asking you. Suppose this is cylindrical tube, hollow cylinder, है ना? Cylindrical tube means hollow cylinder. hollow cylinder है, एक कोई बड़ा लॉन्ग सिलेंडर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है ना, करंट इज फ्लोइंग आई। करंट कहाँ रहेगा? सर्कमफ्रेंस पे रहेगा, अभी इसके सरफेस पे रहेगा ना। तो व्हाट विल बी फील्ड इनसाइड? बोलो। फाइंड फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल। इसमें फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट बताना है। ऑलरेडी वी हैव फाउंड सो मेनी टाइम्स। बोलो जल्दी से बोलो, आउटसाइड क्या आएगा? क्विकली क्विकली बोलो। फर्स्ट केस में आउटसाइड होगी, बी विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट है, आर इज द डिस्टेंस
Sir, you are not audible.
Hello. Children, sir is rejoining, I think. Sir is not audible.